Hello friends, welcome back to my channel. The topic that we are going to discuss in this video is exercise 15.1 of chapter probability. Before watching this video, please make sure you have watched the introduction to probability video. The link of that video is in the description below. Please do watch that video before continuing with this video, as you might find difficulty understanding the concepts used for solving the numericals of exercise 15.1. And also from last video I got reviews that since I have explained completely in English in the last video, and some students might find it difficult to understand in English. So from this video I will explain in English as well as Hindi, so you guys don't find it difficult to understand. If you are new to my channel, then don't forget to subscribe to my channel. So let's start with exercise 15.1. So let us have a look at first question of exercise 15.1. In a cricket match, a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. So सबसे important है कि आप question को समझिए. If you don't understand the question, you won't be able to find the solution. जितने अच्छे से आप क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझोगे, तब जाके आप अच्छे से सोल्यूशन निकाल पाओगे. सो देखते हैं पहले इस क्वेश्चन में दिया क्या है. इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्सवुमन हिट्स अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स. सो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो उस बैट्समैन के पास फेंके गए थे वो 30 बॉल्स थे. उसमें से उसने बाउंड्री हिट कितने बॉल्स पे की है? ओनली 6 टाइम्स, मतलब 6 बॉल से उसने बाउंड्री हिट की है. फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. सो हमें पता है उसने 6 टाइम्स बाउंड्री हिट किया है. आउट ऑफ 30 टाइम्स 6 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट किया है. सो हाउ मेनी टाइम्स शी डिडंट हिट द बाउंड्री, वो हम कैसे फाइंड करेंगे? 30 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पता चलेगा कितने टाइम्स उसने बाउंड्री हिट नहीं की है. सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सो हमने देखा था क्वेश्चन में क्या दिया था. क्रिकेट मैच में बैट्समैन हिट्स बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स. हमें फाइंड क्या करना है? हाउ मेनी टाइम्स शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. सो नंबर ऑफ टाइम्स शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री विल बी 30 बॉल्स में से 6 बॉल्स को माइनस करो. 30 minus 6 which gives us 24. So 24 times she fails to hit a boundary. So हमें फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. अब हमें पता है पहले हमें इवेंट डिस्क्राइब करना होता है. अगर आपको पता नहीं इवेंट क्या है तो इसलिए मैंने कहा था पहले मैंने जो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी का वीडियो बनाया है वो देखिए. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज पहले वो वीडियो देखिए. सो हम डिस्क्राइब करेंगे लेट ई बी द इवेंट दैट बैट्समैन डिड नॉट हिट अ बाउंड्री. Therefore probability of E क्या होगा? Number of times batwoman did not hit the boundary upon total number of balls. So number of times batwoman did not hit a boundary is 24 upon total number of balls is 30. So we know that 6 4s are 24, 6 5s are 30. So we got 4 upon 5, which if you further divide you will get answer as 0.8. So we will write final statement will be therefore the probability that she did not hit a boundary is 0.8. Now let us have a look at question number 2. 1,500 families with 2 children were selected randomly and the following data was recorded. So this is the data recorded in the tabular form. What they have asked us to find: compute the probability of a family chosen at random having first 2 girls, second 1 girl, third no girl. Also check whether the sum of these probabilities is 1.
So what we are supposed to find is probability of first family has 2 girls, second 1 girl, and third no girl. So let us start with the solution. The first we will assume that let even be the event of getting 2 girls. Therefore, probability of even will be number of families having 2 girls upon total number of girls. So number of families having 2 girls is 475. Number of family girls in a family 2. So the frequency is 475. And total number of families in the question is given is 1500. If you further cancel, you get 19 upon 60. So now second is find the probability of getting 1 girl. So now I am making changes here. यहीं पे मैं changes कर रहा हूँ. Let E2 be the event of getting 1 girl. So probability of E2 क्या होगा? Number of families having 1 girl upon total number of girls. Number of families having 1 girl की frequency क्या है? 814. और अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी 1500. फर्दर कैंसिल करोगे आपको मिलेगा 407 अपॉन 750. सिमिलरली लास्ट क्या है? नो गर्ल. सो लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो गर्ल. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विल बी नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग नो गर्ल अपॉन टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स. नो गर्ल की फ्रीक्वेंसी क्या है? 211. इसको फर्दर कैंसिल करोगे आपको, इसको आप ऐसे ही रखिए, इसको फर्दर कैंसिल मत कीजिए. अभी हमें ये भी बोला है फाइंड द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज एंड इट शुड बी 1. चेक करना है वेदर द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1 और नॉट. सो E1 E2 E3 में अभी प्रोबेबिलिटीज के वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ. E1 का कितना मिला था हमें? 19 अपॉन 60. E2 का मिला था हमें 407 अपॉन 750. एंड E3 का है 211 upon 1500. Therefore, sum of the probabilities is equals to 19 upon 60 plus 407 upon 750 plus 211 upon 1500. So आपको पता है कॉमन रूल क्या है? डिनोमिनेटर्स जब तक सेम नहीं होता है तीनों फ्रैक्शन का तब तक हम ऐड नहीं कर सकते. सो हमने जो इसको कैंसिल किया था उसे हम कैंसिल ना करते हुए वैसे ही रखेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी? पहले वाली की क्या मिली थी? 475 अपॉन 1500. 2 गर्ल्स का 475 अपॉन 1500. 1 गर्ल का 814 अपॉन 1500. ये मैं क्यों कर रहा हूँ? सो द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शंस इज सेम. डिनोमिनेटर सेम है तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे अपॉन 475 प्लस 814 प्लस 211. इन तीनों को ऐड करोगे आपको 1500 ही मिलेगा. 1500 अपॉन 1500 इज 1. देयरफॉर सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1. ये भी चेक हो गया. सो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है. नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 Chapter 14. Find the probability that a student of class was born in August. So we have to find the probability that a student of the class was born in August. So let us go to example number 5, section 14.4. So this is the example number 5 on page number 183. So it says that in a particular section of class 9, 40 students were asked about the month of their births and the following graph was prepared for data so obtained. So on एक्स एक्सिस हमें मंथ ऑफ बर्थ दिया है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है. सो हमें फाइंड क्या करना है? अगस्त में कितने स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जिनका बर्थ अगस्त में हुआ था. सो अगस्त में हम देखेंगे 6 स्टूडेंट्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40 है. सो अब हम वापस जाते हैं
एक्सरसाइज 15.1 में। सो सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 40। तो मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 40। हमें फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट अ स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त हमने देखा हिस्टोग्राम में 6 थे। सो मैं क्या करूंगा, लेट ई बी द इवेंट दैट अ स्टूडेंट वाज बोर्न इन अगस्त, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोर्न इन अगस्त upon total number of students. So the number of students born in August are 6 upon total number of students we know are 40. 6 upon 40 is equals to, when you further cancel, 2 3s are 6, 2 20s are 40, which gives us 0.15. Therefore probability that the student of a class was born in August is 0.15. Now question number 4. 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequencies of different outcome. So there are different outcomes: 3 heads, 2 heads, 1 head, no head. 3 coins were tossed simultaneously, and the frequency that we got: 3 head is 23, 2 head is 72, 2 heads is 72, 1 head is 77, and no head is 28. If 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up. So 3 coins are simultaneously tossed. We have to find the probability of only 2 heads coming up. So for 2 heads coming up, we have frequency 72, and we know that the total number of trials are 200. So what will be the probability? Let's see. Now this is the table which is given. So हमें सिर्फ 2 हेड्स की फ्रीक्वेंसी पे ध्यान देना है। 2 हेड्स की फ्रीक्वेंसी 72 है। हमें बोला है कि 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना हो जाएगा, 200। ना हमें फाइंड क्या करना है, इवेंट ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप, देयरफॉर लेट ई बी द इवेंट ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स हैविंग 2 हेड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। आउटकम हैविंग 2 हेड्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, 72। सो 72 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इज 200। इसको फर्दर कैंसिल करोगे आपको मिलेगा 9/25, जिसको फर्दर कैंसिल करोगे आपको मिलेगा 0.36। Therefore the probability of getting 2 heads is 0.36. So अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 5 सब क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम एंड सर्वेड देम टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल एंड द नंबर ऑफ व्हीकल। सो इनकम लेवल और नंबर ऑफ व्हीकल्स का रिलेशन देखा जा रहा है इस क्वेश्चन में। द इन्फॉर्मेशन गैदर इज लिस्टेड इन द टेबल बिलो। सो यहाँ पे मंथली इनकम है, यहाँ पे व्हीकल पर फैमिली है, 0 व्हीकल, 1 2 अबाउट 2। सो हमें 5 सब क्वेश्चंस पूछे हैं, हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। सो पहला है अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। सो हम 10,000 to 13,000 में और ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स पे जाते हैं। सो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 29। एंड टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो रैंडमली सेलेक्ट किए गए हैं वो है 2,400। सो अभी सॉल्व करते हैं। सो सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज जो हमें दी है 2,400। नाउ फर्स्ट में नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स, वो हमने देखा टेबल में कितना है, 29। सो हमें फाइंड क्या करना है, इनकी ही प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, लेट ई बी द इवेंट ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, फिर से ये इधर नीचे आएगा नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग, तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। ये आप लिखना सोल्यूशन में, एग्जाम में जब पूछेंगे। मैं भी डायरेक्टली वैल्यू लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग 10,000 to 13,000 पर मंथ का एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स का वैल्यू है 29 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितना है, 2,400। अभी सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। सो हम टेबल में दे जाके चेक करते हैं। सो 16,000 और मोर एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। सो हमें वैल्यू क्या मिल रही है, 579। सो अभी सेकेंड का सोल्यूशन देखते हैं। सो फर्स्ट वाले में मैं चेंजेस कर रहा हूँ। नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग हमें दिया, अभी फाइंड करना है 16,000 और मोर, 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। सो उसकी वैल्यू हमें पता है कितनी मिली टेबल से, 579। सो लेट ई टू बी द इवेंट ऑफ फैमिली अर्निंग 16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। सो क्या हो जाएगा, 579 अपॉन
टोटल इज 2400. सो सेकंड की वैल्यू मिल गई 579 अपन 2400. सो नेक्स्ट है थर्ड, अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल. डज नॉट ओन एनी व्हीकल मतलब जीरो व्हीकल. सो टेबल में देखते हैं इसकी वैल्यू क्या. सो टेबल में लेस देन 7000 जीरो व्हीकल की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 10. सो नाउ नंबर ऑफ फैमिलीज अर्निंग लेस देन 7000 पर मंथ एंड ओनिंग जीरो व्हीकल की वैल्यू हमें टेबल में क्या मिली थी. टेबल में मिली थी 10. So let E3 be the event of families earning less than 7000 per month and owning zero vehicle. So probability of E3 क्या हो जाएगी 10 upon 2400. इसको फर्दर कैंसिल करके आपको मिलेगा 1 upon 240. Next is question 4, earning rupees 13,000 to 16,000 per month and owning more than 6 vehicles. So table में देखते हैं इसके लिए क्या मिलता है. So 13,000 to 16,000 and owning more than 2 means about 2. So इसकी वैल्यू में मिल रही है 25. So for 4 number of families earning rupees 13,000 16,000 per month and owning more than 2 vehicles की वैल्यू हमें टेबल से क्या मिली 25. So let E4 be the event of families earning rupees 13,000 16,000 per month and owning more than 2 vehicles. So probability of E4 क्या हो जाएगा 25 upon 2400. इसको फर्दर कैंसिल करें तो हमें मिलेगा 1 upon 96. सो द फिफ्थ सब क्वेश्चन इज ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल. सो यहाँ पे मंथली इनकम नहीं बोला, जैसे स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में बोला था अर्निंग दिस टू दिस दिस टू दिस, एक लिमिट दी थी. यहाँ पे कोई लिमिट नहीं दी है, बस इतना बोला है ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल. सो टेबल में जाके देखते हैं वैल्यू क्या होगी. सो अभी ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल का मतलब क्या होता है. ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल मतलब दैट फैमिली कैन हैव जीरो व्हीकल और दे कैन हैव वन व्हीकल बट इट कांट एक्सीड मोर देन 1. सो 0 and 1 के सारे वैल्यूज़ इसमें कंसिडर किए जाएंगे. सो 0 के जो वैल्यू है 10 0 1 2 1 इन सबको ऐड करेंगे, प्लस 1 के जो वैल्यूज़ है उन सबको ऐड करेंगे, और इन दोनों का टोटल जो एडिशन होगा वो हमारा न्यूमरेटर होगा. सो क्वेश्चन नंबर 5, सब क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन देखते हैं. सो नंबर ऑफ फैमिलीज ओनिंग नॉट मोर देन वन व्हीकल मतलब नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग जीरो व्हीकल प्लस फैमिलीज हैविंग ओनली वन व्हीकल, इन दोनों का एडिशन करेंगे. सो फैमिलीज हैविंग जीरो व्हीकल इनका वैल्यूज क्या था 10 + 0 + 1 + 2 + 1. इन सबको ऐड करेंगे हमें कितना मिलेगा 14. फैमिलीज हैविंग वन व्हीकल के वैल्यूज क्या थी 160 + 305 + 535 + 469 + 579. व्हेन वी ऐड ऑल ऑफ दिस वी गेट 2148. Now we have to add both of this as well. 14 + 2148 we get grand total 2162. This is the value of number of families owning not more than one vehicle. Now let E5 be the event of families owning not more than one vehicle. Therefore probability of E5 will be 2162 upon 2400. If you further cancel it we get 1031 upon 1200. So the probability of event of families owning not more than one vehicle is 1031 upon 1200. With this हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Refer to table number 14.7 chapter 14. First, find the probability that a student obtained less than 20% in the mathematics test. Second, find the probability that a student obtained marks 60 or above. So let's go to table number 14. So this is table number 14.7 on page number 186. So the first question जो पूछा था वो था find the probability that a student obtained less than 20% marks. So for less than 20% marks we have to go for 0 to 20. So 0 to 20 number of students कितने थे 7. So number of students कितने होंगे 7 और total number of students जो है यहाँ पे वो है 90. So अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So हमने देखा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 90. Now first में number of students who obtain less than 20% marks in the test is 7. Let even be the event of students scoring less than 20% marks in the test. Therefore probability of even क्या होगा number of students who obtain less than 20% marks in the test upon total number of students. So मैं स्टेटमेंट से लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उनकी वैल्यू लिख रहा हूँ. जब आप एग्जाम में लिखोगे आपको स्टेटमेंट्स लिखना कंपलसरी है. सो वैल्यू क्या होगी 7 upon total number 90. So
फाइनल आंसर क्या है 7/90. सो सेकेंड सा क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट obtained 60 मार्क्स और अबव. सो 60 मार्क्स और अबव के लिए हम देखेंगे 60 to 70 एंड 70 एंड अबव, क्योंकि 60 अबव क्या है 60 to 70 की जो रेंज है वो, और 70 एंड अबव इज ऑल्सो मोर देन 60. सो 60 to 70 का वैल्यू है 15 एंड 70 अबव के वैल्यू है 8. सो हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और उस वैल्यू को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स obtained 60 मार्क्स और मोर. सो उसमें दो आएंगे, स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 60 to 70 स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड अबाउ 70. सो स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 60 to 70 की वैल्यू है 15 एंड इसकी वैल्यू है 8. इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका वैल्यू मेरा 23. लेट E2 बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 60 मार्क्स और अबाउ. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा 23, which will come in numerator, upon total number of value, which is total number of students, which is 90. So 23/90. This is our final answer. So now question number 7. To know the opinion of the students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. So total number of students are 200. The data is recorded in the following table: opinions and number of students: like 135, dislike 65. So 135 students like the subject statistics and 65 number of students dislike the subject statistics. Find the probability that a student chosen at random first likes statistics, second does not like it. So it is very simple question. So solution of question 7. Total number of students is 200. First, let even be the event the student likes statistics. Therefore, probability of even will be number of students who like statistics upon total number of students. So number of students who like statistics is 135 upon total number of students are 200. If you further cancel this, you will get 27/40. So this is the answer for number of students, probability of number of students who like statistics. So the second one is students disliking statistics. So let E2 be the event that student dislikes statistics. Therefore, probability of E2 will be number of students who dislike statistics upon total number of students. So number of students who dislike statistics is given 65. So 65 upon total number of students is 200. So 65 upon 200 will give you after further cancellation 13/40. So this is the answer. Next is question number 8. Refer to question 2, exercise 14.2. What is the empirical probability that an engineer lives first less than 7 km from her place of work, second more than or equal to 7 km from her place of work, third within half kilometer from her place of work. So let's go to question 2 of exercise 14.2. So this is question 2 of exercise 14.2. So first question जो पूछा था वो था less than 7 km from her place to work. So हम देखते हैं less than 7 km कौन से है. So less than 7 km में 5 आता है, 3 आता है. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So there are 9 such engineers who live less than 7 km from their place to work. Now the solution for the first one is very simple. So the total number of engineers हमें दिए कितने 40. First, the number of engineers living less than 7 km from their place of work, हमने देखे कितने engineers थे ऐसे 9. Let even be the event of engineers living less than 7 km from their work, from their place of work. Therefore probability of even क्या होगा, number of engineers living less than 7 km from the place of work, that is 9 upon total number of engineers, which is. So next is number of engineers living more than or equal to 7 km from the place of work. तो अगर आप सोचोगे तो जो पहले के जो 9 थे उनको छोड़ के बाकी सब इंजीनियर्स 7 किलोमीटर या 7 किलोमीटर से ज़्यादा दूर अपने वर्क प्लेस से है. सो बेसिकली आपको गिनने से बेहतर होगा कि आप लॉजिक लगाओ. सो लॉजिकली क्या होगा, 40 में से अगर आप 9 निकाल दो तो उतने इंजीनियर्स मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम दियर वर्क प्लेस रह रहे हैं. सो 40 में से 9 निकाले मैंने, कितना मिला 31. अगर आपको ये लॉजिक नहीं समझ आ रहा है तो आप गिन सकते हो, आपको गिन के भी 31 ही मिलने वाले हैं. सो आई होप आपको ये लॉजिक समझ गया होगा 31 क्यों है. 40 में से जो पहले के 9 माइनस कर दिया बचा क्या 31. Let E2 be the event of engineer living more than or equal to 7 km from their workplace. Therefore probability of E2 क्या होगा 31/40. So जो थर्ड सब क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग है. वहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ इंजीनियर्स लिविंग विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क. सो ऐसा एक भी इंजीनियर नहीं है जो विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क है. सो ऐसे कितने इंजीनियर्स है 0.
Let E3 be the event of engineer living within ½ kilometer from their workplace. So probability of E3 क्या होगा 0/40. मैंने आपको इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था इंट्रोडक्शन वाला उसमें बताया था प्रोबेबिलिटी कैन बी 0. सो 0/40. इसके ऊपर हमने एक सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व किया उस वीडियो में. अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए. सो 0/40 एनीथिंग 0/anything इज ऑलवेज 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इज 0. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत एक्टिविटी है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है. सो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको सॉल्व करके नहीं दे रहा हूँ, ये आप खुद से सॉल्व कीजिए. डायरेक्टली विल जंप टू क्वेश्चन नंबर 11. 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contain the following weights of flour in kg. So ये है व्हीट फ्लावर के बैग्स है, ये इतने केजीज और 11 बैग्स है और हर एक बैग में कितने केजी ऑफ व्हीट फ्लावर है वो दिया है. जैसे 4.97 kg, 5.05 kg, सो एंड सो फोर्थ. हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दिस बैग्स चोजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर. सो ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. देखते हैं इसमें से मोर देन 5 kg किस में है. इसमें मोर देन 5 है कि नहीं? इसमें है. सो 1 2 3 4 5 6 7 आउट ऑफ 11 7 बैग्स में मोर देन 5 kg है. सो हम सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 11. सो टोटल नंबर ऑफ व्हीट बैग्स हमें कितने दिए हैं? 11. हमने काउंट किया नंबर ऑफ बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर कितने थे? 7. सो लेट इवन बी द इवेंट ऑफ बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा? नंबर ऑफ बैग्स हैविंग मोर देन 5 kg ऑफ फ्लावर जो आप न्यूमरेटर में लिखोगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ व्हीट बैग. मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू लिख रहा हूँ. सो द वैल्यूज आर 7/11. Now question number 12 and question number 13 are based on questions of exercise 14.2 of chapter statistics. So पहले देखते हैं question number 12. In question number 5 of exercise 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days. So let's go to question number 5 exercise 14. So this is question number 5 exercise 14.2. So हमें बोला है 0.12 और 0.16 के इंटरवल में कितने वैल्यूज़ थे. तो अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है तो आपको पता होगा सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ थे. अगर आपने सॉल्व नहीं किया है फिर भी आप डायरेक्टली सर्च करके देख सकते हो 0.12 एंड 0.13. दिस आर द ओनली 2 वैल्यूज़ विच आर इन द इंटरवल 0.12 टू 0.16. सो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन पार्ट में टोटल नंबर ऑफ डेज हमें दिए थे 30. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द डे 0.1 टू 0.16. और एनी डे हमने देखा कितने थे 2. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो लेट ई बी द इवेंट ऐसे करके स्टेटमेंट लिख सकते हो. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू 2/30 which is equals to 1/15. Now question number 13. In question 1 of exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood groups of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. So let's go to question number 1 of exercise 14. So ये है question 1 of exercise 14.2. So अगर आपने frequency distribution table बनाया होगा तो आपको पता होगा so number of students having blood group AB व 3. अगर नहीं बनाए तो यहाँ पे चेक करते हैं 1 2 3. So ऐसे 3 स्टूडेंट्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप AB है. So let us solve the question. So question number 13 का solution देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम देखा कितने थे 30. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB हमने देखे कितने 3. लेट E बी द इवेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लड ग्रुप AB कितने हैं 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30. 3 1s are 3 10s are. सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल था. सो विद दिस गाइस हमारे एक्सरसाइज 15.1 के सारे 13 क्वेश्चंस सॉल्व हो जाते हैं. अभी हम समरी पे देखते हैं. इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट. फर्स्ट, द इवेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. इवेंट क्या आपको अब तक तो समझ गया होगा. सेकेंड, एम्पेरिकल फॉर्मूला. थर्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1. 0 and 1 इंक्लूसिव. ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था. प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. इट वोंट एक्सीड 1 and it can never be negative. It will always be between 0 and 1. With this guys हमारे exercise 15.1 के सारे questions solve हो जाते हैं. If you guys have any doubt, feel free to ask in the comment section. I will try my best to solve your doubts. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो या फिर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस.